Radhe Radhe children. Now, today we are supposed to go with a new topic, that is respiration in human. See, this is most important topic, as previously we have done digestive system, digestion in human beings. That was also an important topic. So as respiration in human is also an important topic. Here I have drawn a diagram for human respiratory system. Now always when you learn the answer or when you start doing any answer, you are supposed to learn the passage of respiration, that is the organs which are associated in respiration. So the organs which are associated in respiration are nostril. Actually the respiration starts from nose. So nose, then it comes is nostrils, then nasal passage, pharynx, larynx, cartilaginous rings, bronchus, bronchi, bronchioles and alveoli, and lungs. These are the most important topics which are being associated with the respiration. Now here lungs. So these are the organs which are being associated in respiration. Now how does the respiration starts? See, we respire oxygen from atmosphere. The respiration basically starts from our nose, and the starting point of the nose is known as nostril. See, this is a nostril. This is known as starting point of respiration. So see, here I have again drawn a mind map for you, how by which you can understand respiration very easily. See, respiration समझने के लिए आपको ये सारे के सारे ऑर्गन्स के नाम याद रखने हैं और ये किस ऑर्डर में रेस्पिरेशन जा रहा है बस वो याद रखना है. सबसे इजी टॉपिक है. आज हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं. एक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ना है और एक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ना है. वो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. सो oxygen from atmosphere comes in our body through nose. It enters the nose through the openings which is known as nostril. तो सबसे पहले आता है nostril. Now air from nostril pass into nasal cavity. ये जो बीच वाला पोर्शन है नाक के बीच का अंदर का, ये जो बीच वाला hollow पोर्शन है, hollow portion, this is known as nasal cavity. तो it comes to nasal cavity. अब nasal cavity में क्या है? तो नेजल कैविटी में दो चीज होती हैं. इट कंटेन्स फाइन हेयर, छोटे 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 बाल होते हैं, एंड म्यूकस, दैट इज अ स्टिकी सब्सटेंस. नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ हेयर एंड म्यूकस? तो दे बेसिकली ट्रैप द डस्ट. व्हेन वी ब्रीथ द एयर फ्रॉम द ऑक्सीजन, it contains dust particles, it contains micro small particles. Now when we breathe in, when we breathe, so that small particles, dust particles get trapped in the fine air and mucus, and rich oxygen, the air which is rich in oxygen, that goes into our body. Now from nasal cavity it passes to pharynx, that is the end of nasal cavity. The end of nasal cavity is known as pharynx. It from nasal cavity it passes to pharynx. Now from pharynx it basically goes to glottis. See, glottis is a path which is a combined path of air and food. Actually windpipe और air pipe, ये दोनों कंबाइन होके जहां से जाती है, जो पाथ से जाती है, उस पाथ के अंदर उस पाथ में से जहां से एयर पास होती है उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं. अब ग्लॉटिस होता क्या है? तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय एपिग्लॉटिस. अब ग्लॉटिस होता क्या है? एक तरह की फ्लिप जैसी होती है. एक तरह की फ्लिप जैसी होती है. फ्लिप होती कैसी है? जैसे आपके पास एक पाइप है, एक हॉलो पाइप है, उस पाइप के पास में एक फ्लिप है, और फ्लिप इस तरह से है कि जब आप खाना खा रहे हो, व्हेन यू आर ईटिंग द फूड, तो दैट फूड कम्स ऑन द एपिग्लॉटिस. इट कम्स ऑन एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस पे गिरेगा तो वो एपिग्लॉटिस पे जैसे गिरेगा ऐसे वो भारी हो जाएगा और एपिग्लॉटिस ऐसे बंद हो जाएगा. जैसे एपिग्लॉटिस बंद हुआ ऐसे फूड will go into your stomach through esophagus.
फूड यहां से ऑसोफेगस में चला जाएगा। अगर ये एपिग्लोटिस नहीं होता, अगर एपिग्लोटिस नहीं होता तो क्या होता कि व्हेन वी आर ईटिंग द फूड में कम फ्रॉम अवर नोज। समटाइम्स इट हैपन, कई बार ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते खाते हम किसी बात पे या तो हंसते हैं या हम पानी पीते हैं, पानी पीते पीते अगर हमें हंसी आ जाती है, हंसी आ जाती है या खांसी आ जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो वो पानी वी आर ड्रिंकिंग दैट वाटर और फूड और एनीथिंग फ्रॉम माउथ, but it comes out from our nose. Why it comes out from our nose? Because at that time this epiglottis do not cover it. वो लंग्स वाला जो विंड पाइप है उसको कवर नहीं कर पाता। एक्चुअली एयर पाइप, दैट इज विंड पाइप और फूड पाइप, दोनों पैरेलल एक दूसरे के साथ मूव करती है, मगर उसके बीच में एक जगह पर एक फ्लैप होती है, फ्लिप बोलते हैं जिसे, फ्लिप। एक फ्लिप जैसा होता है। वो फ्लिप का काम क्या होता है कि फूड को एयर पाइप के अंदर एंटर नहीं करने देगा, यानी वो लंग्स के अंदर एंटर नहीं होगी, वो सीधा फूड पाइप में जाएगा। और उसका काम क्या होता है, इसीलिए उसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। सो आफ्टर फेरियंस कम्स ग्लोटिस, एंड दिस ग्लोटिस इज प्रोटेक्टेड बाय एपिग्लोटिस। अगेन आई एम टेलिंग इट इज प्रोटेक्टेड बाय एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि जब फूड आता है तो एपिग्लोटिस कवरिंग दे देता है विंड पाइप को, और that food directly moves to esophagus and goes into the stomach, and that food do not enters into the windpipe. वो काम होता है एपिग्लोटिस का। तो अब एपिग्लोटिस के बाद ये जो ग्लोटिस होती है, it further get divides into trachea. It divides into trachea, मगर ट्रेकिया से ऊपर, see, ट्रेकिया से ऊपर ये जो पाइप है, ये पूरा का पूरा, इसे हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। ये ट्रेकिया के ऊपर यहां पर यानी ट्रेकिया से ऊपर, दैट इज अपर टू ट्रेकिया, वी आर हैविंग अ लैरिंक्स। लैरिंक्स का मतलब होता है वॉइस बॉक्स। सी दिस, यहां पर गले के यहां पर एक डेमचा जैसा होता है, एक डेमचा होता है जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। आप अगर अपने बोलोगे, कोई भी चीज बोलो और अपने गले पे हाथ रखोगे तो यू विल फील योर लैरिंक्स। अब बेटा ये थोड़े पतले लोगों में ज्यादा दिखता है और हम जैसे पतले लोगों में थोड़ा कम दिखता है। और ये जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स के ऊपर एक बोन होता है जिसे हम लोग एडम एप्पल बोलते हैं, और एडम एप्पल इज ओनली सीन इन मेल्स एंड नॉट इन फीमेल्स। सो दिस लैरिंक्स इज ऑन द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। अच्छा, अब ट्रेकिया है क्या? देखो, ये जो पूरा का पूरा पाइप है, ये जो पूरा का पूरा कवरेज है, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। अब दिस ट्रेकिया इज प्रोटेक्टेड बाय, यानी इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स। देखो यहां पर ये रिंग्स है, सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स। अब ये रिंग का काम क्या है कि जब कभी भी व्हेनेवर इसके पास ऑक्सीजन नहीं भी होता तो वो इस ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देगा। ट्रेकिया जैसी पोजीशन में है उसी पोजीशन में ट्रेकिया को रखेगा। अगर ये सी शेप रिंग नहीं होती, तो अगर एयर नहीं होगी आपके बॉडी के अंदर किसी कारण से, तो उस समय पे ये ट्रेकिया कोलैप्स हो जाएंगे, तो ये कोलैप्स नहीं होने देगा। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्टिलेजियस रिंग्स। नाउ दिस ट्रेकिया, ये जो ट्रेकिया है, इट फर्दर डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, इनको कहा जाता है ब्रोंची। अगेन द टू पार्ट्स आर नोन एज ब्रोंची। So these are known as bronchi, and single part is known as bronchus. B-R-O-N-C-H-U-S, bronchus. So this single part is known as bronchus. ये एक पेड़ जो होता है उसकी ट्रंक के जैसा होता है। ये जो आपका ट्रेकिया है, इट इज ट्रंक, समझिए वो एक ट्रंक है, और ट्रंक में से जैसे ब्रांच निकलती है, ब्रांच, तो वो ब्रांच इज नथिंग बट ब्रोंची। और उस ब्रांच में से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, उस एक ब्रांच में से बहुत सारी ब्रांच निकलती है, उसको हम बोलते हैं ब्रांचेस। तो सेम वे, जब यहां पे ऑन दिस ब्रोंची मैनी ब्रांचेस कम्स आउट, देखो यहां इस ब्रोंची से
ब्रॉन्ची से बहुत सारी नीचे 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 यहाँ पे ब्रांचेस निकल रही हैं, विच इज नोन एज ब्रॉन्चियोल्स. इट इज नोन एज ब्रॉन्चियोल्स. नाउ दिस ब्रॉन्ची बेसिकली डिवाइड्स इनटू लंग्स. ये जो ब्रॉन्चीज हैं ये डिवाइड कहाँ हो रही है? देखो हमने कैसा बीन शेप स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे. ये एक्चुअली डिवाइड कहाँ पे हो रही है, कहाँ से हो रही है? तो लंग्स के अंदर डिवाइड हो रही है. एंड फ्रॉम स्मॉल ब्रॉन्चियोल्स, जैसे ही ये नीचे डिवाइड होगी ऐसे स्मॉल स्मॉल ब्रॉन्चियोल्स हो जाती है. और ब्रॉन्चियोल्स के एंड पर, जो ब्रॉन्चियोल्स के एंड होते हैं, एक्चुअली ब्रांचेस के एंड्स पर आपने लीव्स देखे होंगे. एक पेड़ होता है, पेड़ के अंदर ब्रांचेस होते हैं और ब्रांचेस के एंड्स पर लीव्स होते हैं. यहां पर ब्रांचेस यानी ब्रॉन्चियोल्स की एंड पर एल्वियोली होता है. देयर इज एल्वियोली एट द एंड ऑफ ब्रॉन्चियोल्स. नाउ एल्वियोली है क्या? एक्चुअली एल्वियोली इज विथ thin walls. It contains very thin walls and covered with blood capillaries. And they are covered with blood capillaries. So exchange of gases basically takes place in alveoli. The easy way to learn this respiration in human beings from trachea, क्योंकि यहां से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो मैंने एक शॉर्टकट बनाया है. यहाँ पे लिखा है इजी वे टू लर्न. जैसे प्लांट्स और ह्यूमन को कंपेयर करते हैं तो प्लांट्स के अंदर ट्रंक होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रैकिया है. प्लांट्स के अंदर ब्रांच है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रॉन्ची है. प्लांट्स के अंदर ब्रांच आगे डिवाइड होती है ब्रांचेस में, तो यहां पर ब्रॉन्ची आगे डिवाइड होती है ब्रॉन्चियोल्स में, और जहां पे ब्रांचेस एंड होती है वहां पर लीव्स होते हैं. ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के अंदर जहां पे ब्रॉन्चियोल्स एंड होते हैं वहां पर एल्वोली होती है. जैसे प्लांट्स रेस्पिरेशन करता है ऐसे यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाना, ब्लड के अंदर जाना. क्योंकि हमने पढ़ा था एल्वोलीज आर रिच इन ब्लड, तो ब्लड के अंदर जाना और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वापस एल्वोली में आ जाता है. नाउ कम्स द मेन टॉपिक विच इज नोन एज, क्योंकि हमने यहां पर एंड किया. एक्चुअली ये हमारे पास रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स था, तो ये तो सिर्फ हमारे पास मेथड थी. अब इस मेथड से आगे मैकेनिज्म क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता कैसे है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आ रहा है, इसका जो मैकेनिज्म है ये हम लर्न करते हैं. तो इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को मैंने एक बहुत बढ़िया नाम दिया है, मैं इसे कहता हूं बलम पिचकारी. शायद आपको याद होगा रणवीर कपूर की एक पिक्चर आई थी, उसमें गाना था बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी कवारी हो गई या पता नहीं कौन सी हो गई, तो बलम पिचकारी. अब वो पिचकारी का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है. अब ये पिचकारी कौन सी? आजकल तो भैया चाइनीज पिचकारी और बाकी अलग अलग तरह की पिचकारी चलती हैं. हम उस पिचकारी की बात नहीं कर रहे, हम उस पिचकारी की बात करें जो कृष्ण भगवान राधा जी के सामने यूज किया करते थे. वो पंप वाली पिचकारी, ऐसे खींच के जिसमें से भरते थे, जैसे पंप से खींच के पानी भरते हैं और फिर उसमें करते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है, उसको हम कहते हैं बलम पिचकारी. सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग is nothing but पिचकारी. Now what is पिचकारी? How does it works? So मैंने इस पार्ट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है. एक पार्ट दिया है इनहेल, दूसरा पार्ट दिया है मैंने एक्सेल. अब इनहेलेशन में होता क्या है, तो इनहेलेशन कैसे स्टार्ट होता है? इनहेलेशन इज नथिंग बट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन. आपकी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन एंटर करेगा तभी आप उसे इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, इनहेलेशन प्रोसेस कहेंगे. तो एंट्री ऑफ ऑक्सीजन. अब एंट्री ऑफ ऑक्सीजन कैसे होती है? तो सबसे पहले एंट्री ऑफ ऑक्सीजन में आपका डायफ्राम नीचे जाता है. नाउ व्हाट इज डायफ्राम? सी दिस इज डायफ्राम. लंग्स के नीचे का एक जो पार्ट होता है उसे हम डायफ्राम कहते हैं. अब ये जो डायफ्राम है लंग्स के नीचे का पार्ट, ये क्या है? मेरी पिचकारी का हैंडल. आपको पता होगा अगर हमें पानी भरना है तो हमें उस हैंडल को पीछे खींचना पड़ता है. अगर हमने हैंडल को खींचा तो वो पिचकारी के अंदर पानी भरता है. तो पीछे जाने का मतलब है हम उसे वर्ड यूज करते हैं डाउन. सो डायफ्राम मतलब मेरे पिचकारी का हैंडल. डायफ्राम्स मूव्स डाउन. जब डायफ्राम्स डाउन मूव करेगा
यानी आप पिचकारी को जब आप पीछे खींचोगे तब क्या होता है, तब वॉल्यूम इन थोरियक कैविटी इंक्रीजेस। जब आप पिचकारी को खींच रहे हो तो वो जो जिसके अंदर पानी भरा जा रहा है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इन थोरियक कैविटी, आपके बॉडी के अंदर जो लंग्स वाला पोर्शन है वहां पे थोरियक कैविटी में वॉल्यूम विल इंक्रीजेस। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एयर प्रेशर इन द चेस्ट डिक्रीजेस। दो चीज के ऊपर ये गेम चलेगा, एक थोरियक कैविटी, वॉल्यूम इन थोरियक कैविटी एंड प्रेशर इन चेस्ट, वॉल्यूम इन थोरियक कैविटी एंड प्रेशर इन चेस्ट, वॉल्यूम इन थोरियक कैविटी एंड प्रेशर इन चेस्ट, दो चीज के ऊपर काम करेगा। तो वॉल्यूम इन थोरियक कैविटी इंक्रीजेस एंड एयर प्रेशर इन द चेस्ट डिक्रीजेस। जब ये दो चीज हो जाती है तो ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड रश इनटू द लंग्स। तो जब आप पिचकारी को पीछे खींचते हैं, पीछे खींचना, पिचकारी के हैंडल को पीछे खींचना, ये डायफ्राम नीचे मूव करना। अब जब डायफ्राम नीचे मूव करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी थोरियक कैविटी इंक्रीज होती है। थोरियक कैविटी इंक्रीज हो रही है तो एयर प्रेशर घट रहा है, एयर प्रेशर डिक्रीजेस। और जब एयर प्रेशर डिक्रीज होता है उस समय पे जिस बाल्टी में आपने पानी रखा है तो वो पानी धीरे धीरे उस ट्यूब के अंदर सक होके आता है। सेम वे हियर ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड रश इनटू द लंग्स। अब जैसे ही ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी, लंग्स के अंदर आएगी, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑक्सीजन लास्टली रिच टू एल्वियोली, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वियोली। ऑक्सीजन कम्स टू एल्वियोली। अब वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड को देगा और ब्लड के पास से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस उस समय पे होता है एल्वियोली के अंदर। एल्वियोली क्या करेगा, रिच ऑक्सीजन ब्लड को देगा और ब्लड के पास से कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेगा। अब वो जो ब्लड के पास से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा उसका प्रोसेस कैसे होगा, तो अब होगा एक्सेल, यानी हम सांस बाहर निकाल रहे हैं, यानी वी आर थ्रोइंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट। एक्सेल, एक्सेल का मतलब क्या होता है, एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन योर बॉडी, व्हाटएवर कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर उसको बाहर फेंकना, यानी उसे एक्सेल बोलेंगे। अब पिचकारी है आपके पास, फिर से अब पिचकारी भरी हुई है आपके पास, अब उसमें से आपको पिचकारी को चलाना है तो क्या करोगे, आप पिचकारी को आगे की तरफ मूव करोगे, उसके हैंडल को, यानी डायफ्राम मूव्स अप। डायफ्राम्स कहां कर रहा है, इट मूव्स अप। जब डायफ्राम्स मूव अप कर रहा है तो वो जो बीच की स्पेस थी, बीच की पिचकारी की स्पेस थी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी वॉल्यूम इनसाइड द थोरियक कैविटी डिक्रीजेस। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब आप उसको जोर से ऐसा मारोगे तो वहां पर प्रेशर क्रिएट होता है। सो एयर प्रेशर इन द चेस्ट increases and carbon dioxide from inside this carbon dioxide inside lungs is pushed out through nostril, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया। दिस इज बेसिकली नोन एज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसे हम पिचकारी कहते हैं। यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स कंपेयर किए हैं आपको याद रखने के लिए कि पिचकारी का हैंडल वो डायफ्राम है, पिचकारी का हैंडल वो डायफ्राम है, पिचकारी के आगे वाला पार्ट वो आपका लंग्स है। जब पिचकारी के हैंडल को आप खींचते हैं, व्हेन डायफ्राम्स मूव्स डाउन, तो अब अंदर वॉल्यूम, दो वर्ड याद रखने, वॉल्यूम इन थोरियक कैविटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर इन चेस्ट डिक्रीजेस। सो ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड रश इनटू द लंग्स। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वियोली। जैसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई, यानी एल्वियोली इज फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, देन एक्सहेलेशन प्रोसेस स्टार्ट, दैट इज नथिंग बट एग्जिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे डायफ्राम ऊपर मूव करेंगे तो वॉल्यूम इन द थोरियक कैविटी डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो अब आपको लर्न करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस, पहले सबसे पहले इनहेलेशन, डायफ्राम पुश डाउन, डायफ्राम डाउन, डाउन होगा तो दो चीज होगी, एक थोरियक कैविटी इंक्रीजेस, थोरियक कैविटी देयर इज वॉल्यूम इन थोरियक कैविटी इंक्रीजेस, प्रेशर इन चेस्ट डिक्रीजेस, ऑक्सीजन कम्स इन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वियोली। फिर से जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई, एल्वियोलीज आर फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, then exhalation process, that is exist of carbon dioxide, again diaphragms push up,
तो volume in thoracic cavity decreases, volume in thoracic cavity decreases, pressure increases, and carbon dioxide is thrown out of the body. This is the basic process, that is mechanism of breathing. Children, now if you like our topics, if you feel that whatever we teach you is useful for you, is easy for learning, please subscribe us, subscribe our channel on YouTube, give the likes, please share the comments, because all the comments are fruitful for you, whether they are positive or negative. It will give us improvement. If anything more is to be improved, please tell. Thank you, children. Radhe Radhe.